1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 7 चैप्टर 1 वर्स से 35 वर्स तक, ड्यूट्रोनॉमी 33 चैप्टर और 34 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन से 35 वचन और व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और 34 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Luke 7 chapter. The centurion's faith, Christ healeth his servant, raiseth the widow's son, Christ's testimony of John. First verse. Now, when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum, and a certain centurion's servant who was dear unto him was sick and ready to die. And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant. And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying that he was worthy for whom he should do this. For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue. Then Jesus went with them, and when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldst enter under my roof. Wherefore, neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word, and my servant shall be healed. For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. And they that were sent, returning to the house, found the servant whole that had been sick. And it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now, when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. And there came a fear on all, and they glorified God, saying that a great prophet is risen up among us, and that God hath visited his people. And this rumour of him went forth throughout all Judea and throughout all the region round about. And the disciples of John shewed him of all these things. And John, calling unto him 2 of his disciples, sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come, or look we for another? When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come, or look we for another? And in that same hour he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits, and unto many that were blind he gave sight. Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell
John, what things ye have seen and heard, how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached. And blessed is he whosoever shall not offended in me, shall not be offended in me. And when the messengers of John were departed, he began to speak unto the people concerning John. What went ye out into the wilderness for to see? A reed shaken with the wind. But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled and live delicately are in king's courts. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet. This is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. For I say unto you, among those that are born of woman, there is not a greater prophet than John the Baptist. But he that is least in the kingdom of God is greater than he. 29 verse. And all the people that heard him and the publicans justified God, being baptized with the baptism of John. But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? And to what are they like? They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned to you, and ye have not wept. For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and ye say, He hath a devil. The Son of Man is come eating and drinking. And ye say, Behold, a gluttonous man, and a wine bibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of all her children. लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन से 35 वचन तक BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एक सूबेदार का विश्वास। पहले वचन से, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया। जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कहकर तो वह उसे करता है, यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। विधवा के पुत्र को जीवन दान। 11 वचन से आगे। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जी रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था।
और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्न। 18 वचन से आगे। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास में रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अतः मैं ये इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान है? वे उन बालकों के समान है जो बाजार पेट में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो, देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। ड्यूटरोनॉमी 33 चैप्टर और 34 चैप्टर पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से। 33 पढ़ेंगे। द मैजेस्टी ऑफ गॉड, द ब्लेसिंग्स ऑफ द 12 ट्राइब्स, द एक्सेलेंसी ऑफ इसराइल। फर्स्ट वर्स से, and this is the blessing wherewith Moses the man of God blessed the children of Israel before his death. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000s of saints. From his right hand went a fiery law for them.
Yea, he loved the people, all his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. Everyone shall receive of thy words. Moses commanded as us a law, even the inheritance of the congregation of Jacob. And he was king in Jeshurun. When the heads of the people and the tribes of Israel were gathered together, let Reuben live and not die, and let not his men be few. And this is the blessing of Judah. And he said, Hear, Lord, the voice of Judah, and bring him unto his people. Let his hands be sufficient for him, and be thou an help to him from his enemies. And of Levi he said, let thy Thummim and thy Urim be with thy Holy One, whom thou didst prove at Massa, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah, who said unto his father and to his mother, I have not seen him, neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children, for they have observed thy word, and kept thy covenant. They shall teach Jacob thy judgments, and Israel thy law. They shall put incense before thee, and whole burnt sacrifice upon thine altar. Bless, Lord, his substance, and accept the work of his hands. Smite through the loins of them that rise against him, and of them that hate him, that they rise not again. And of Benjamin he said, The beloved of the Lord shall dwell in safety by him, and the Lord shall cover him all the day long, and he shall dwell between his shoulders. And of Joseph he said, Blessed of the Lord be his land, for the precious things of heaven, for the dew and for the deep that coacheth beneath, and for the precious fruits brought forth by the sun, and for the precious things put forth by the moon, and for the chief things of the ancient mountains, and for the precious things of the lasting hills, and for the precious things of the earth and fullness thereof, and for the good will of him that dwelt in the bush. Let the blessing come upon the head of Joseph, and upon the top of the head of him that was separated from his brethren. His glory is like the firstling of his bullock, and his horns are like the horns of unicorns. With them he shall push the people together to the ends of the earth, and they are the 10,000s of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh. And of Zebulun he said, Rejoice, Zebulun, in thy going out, and Issachar in thy tents. They shall call the people unto the mountain, there they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall suck of the abundance of the seas, and of treasures hid of the sand. And of Gad he said, Blessed be he that enlargeth Gad. He dwelleth as a lion, and teareth the arm with the crown of the head. And he provided the first part for himself, because therein a portion of the lawgiver was he seated. And he came with the heads of the people. He executed the justice of the Lord, and his judgments with Israel. And of Dan he said, Dan is a lion's whelp. He shall leap from Bashan. And of Naphtali he said, O Naphtali, satisfied with favor, and full with the blessing of the Lord, possess thou the west and the south. And of Asher he said, Let Asher be blessed with children, let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil. Thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky.
The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, Destroy them. Israel then shall dwell in safety alone. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine. Also his heavens shall drop down dew. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency, and thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places. Chapter 34, first verse. Introduction. Moses from Mount Nebo vieweth the land, his death and burial, his age, 30 days mourning for him. Joshua succeeded him. The praise of Moses, first verse. And Moses went up from the plains of Moab unto the mountain of Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho. And the Lord shewed him all the land of Gilead unto Dan, and all Naphtali, and the land of Ephraim, and Manasseh, and all the land of Judah unto the utmost sea, and the south, and the plain of the valley of Jericho, the city of palm trees, unto Zoar. And the Lord said unto him, This is the land which I swear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed. I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Beth Peor. But no man knoweth of his sepulchre unto this day. And Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force abated. And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab 30 days. So the days of weeping and mourning for Moses were ended. And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses has laid his hands upon him. And the children of Israel hearkened unto him, and did as the Lord commanded Moses. And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face. In all the signs and the wonders which the Lord sent him to do in the land of Egypt, to Pharaoh and to all his servants and to all his land, and in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses shewed in the sight of all Israel. व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और 34 अध्याय हम पढ़ेंगे। पहले वचन से, मूसा का इस्राएलियों को आशीर्वाद देना। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीनै से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने परान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियाँ निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इस्राएल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन न मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हो। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन। और उसे उसके लोगों के पास पहुँचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा,
तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों के कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। फिर उसने बेन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का यह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल जो नीचे है और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उगते हैं और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलोटा है, और उसके संग बनैले बैल कैसे है। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एप्रैम के लाखों लाख और मनश्शे के हजारों हजार है। फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहाँ धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है और बाह को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वह रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता में से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाँव तले तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे, और इस्राएल निडर बसा रहता है। अन्न और नये दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंद देगा। मूसा की मृत्यु, 34 अध्याय पहले वचन से। फिर मूसा मोवाब के अराबा से नबी पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश
और अप्रेम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपने मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोना और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानती रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्हों और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 26 चैप्टर 14 वर्स से 25 वर्स। एक्सोडस 36 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 14 वचन से 25 वचन तक, और निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय। हमने अकेले में बैठकर इसे पढ़ना है, हमारे व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ना है। और जो भी परमेश्वर हमारे अंदर गुप्त में परमेश्वर हमारे अंदर रहस्य खोलता है, या कुछ रहस्य की बातें भेद बताता है, या हमारे ज़िंदगी के लिए कुछ कहता है सुधारने के लिए या उन्नति के लिए, हमने उसे नोट्स में बनाकर लिखना है। और फिर उन वचनों को जहाँ से परमेश्वर हमसे बातें किया, उस वचनों को हमने अपने जीवन में उपयोग में लाना है, लागू करना है। इससे हमारा जो व्यक्तिमत्व है, जो 2 साल के अंत में देखेंगे, हम परमेश्वर के वचन से ढला गया व्यक्ति तैयार होकर निखर कर आएंगे। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दे रखा है। हम ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे और परमेश्वर के काम के लिए योग्य बनेंगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।